एफपीओ रद्द होने के बाद अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके लिए निवेशकों का हित सर्वोपरि है, इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए एफपीओ को वापस लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले का भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। आपको बता दें, अदानी ग्रुप ने कल ही अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस ले लिया था, जबकि एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation and growth will be managed by our internal accruals. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy. We have a strong focus on ESG, and every business of ours will continue to create value in a responsible way. The strongest validation of our governance principles comes from several international partnerships we have built across our different entities. I take this opportunity to thank our investment bankers, institutional investors, and shareholders from within and outside the country for giving unflinching support to the FPO. Despite the volatility in the stock over the last week, your faith and belief in the company, its business, and its management has been extremely reassuring and humbling for all of us. We are very confident that we will continue to get support in the future also. Thank you again for your trust in us. Jai Hind.
आपको बता दें कि कल ही अदानी ग्रुप का बड़ा फैसला सामने आया है और इस ग्रुप ने एफपीओ वापस लिया है। कल पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ था जिसे वापस लिया गया। अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ जिसे अदानी ग्रुप ने वापस लेने का फैसला कर लिया है। अदानी एंटरप्राइजेस निवेशकों के पैसे वापस करेगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए किया गया है। ये भी कहा गया है कि मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। साथ ही ये भी बयान दिया गया कि हमारी बैलेंस शीट बहुत अच्छी स्थिति में है। कर्ज चुकाने के मामले में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है। इस फैसले से आगे की योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। इस फैसले का प्रभाव दूसरे ऑपरेशंस पर नहीं पड़ेगा। अडानी ग्रुप ने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी और अब हमारी संवाददाता प्रियांशी शर्मा ज्यादा जानकारी देंगी। तो आपको बता दें कि अदानी ग्रुप ने यह बड़ा फैसला लिया है, एफपीओ वापस लेने का फैसला। इसके बाद गौतम अदानी मीडिया के सामने आए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले का दूसरे ऑपरेशंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बजट पेश होने के बाद आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए आज, कल, सोमवार और मंगलवार का दिन तय किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। इधर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। समान विचारधारा वाले दलों की एक बैठक आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बुलाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। अब 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस ऐलान से मिडिल क्लास के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं उद्यमी और विशेषज्ञ इसका स्वागत कर रहे हैं। जयपुर में राजपुताना हॉलिडे मेकर से जुड़े संजय कौशिक बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कई साल पर्यटन उद्योग मंदा रहा, कमाई ज्यादा नहीं हुई। टैक्स में मिली राहत से अब उन्हें कुछ बचत की उम्मीद है। पर्यटन सबसे ज्यादा इफेक्टेड बिजनेस था ड्यूरिंग कोरोना और उस वक्त ना लोगों के पास इनकम थी, ना सैलरी थी, ना कुछ था। पर नाउ इवन 7 लाख पे भी जा रही है। तो जो अमाउंट इसमें बचेगा, आई कुड बाय एसआईपी और जो स्मॉल सेविंग्स में लगा सकते हैं। यू कैन बाय स्मॉल थिंग्स, सो इट विल बी समहाउ सपोर्टिंग। लेकिन असली खुशी वेतनभोगी क्लास में दिख रही है। उन्हें 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए था। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई का सैलरीड क्लास खुश है। 7 लाख रुपीस तक ही सबका पैकेज होता है मिडिल क्लास में, तो अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो बजट में काफी राहत मिली है। बहुत अच्छा मूव है सीतारमण जी के द्वारा। सैलरी क्लास के लिए बहुत फायदा है। मिडिल क्लास मैन है, उसको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प होगी सेविंग्स को लेके, और थोड़ा सा वो अपना जो सैलरी में से अगर कुछ टैक्स अगर उसको बचता है तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्पेंड भी करेगा उसको। गवर्नमेंट ने ये स्टेप लेके इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और जिनकी बिलो 7 लाख है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिबेट करा है। मैं भी सैलरीड ही हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। बहुत अच्छी छूट दी है। आई प्रपोज टू इंक्रीज द रिबेट लिमिट टू 7 lakhs इन द। नए ऐलानों के बाद नई टैक्स व्यवस्था में आय के आधार पर स्लैब्स अब कुछ इस तरह होंगे। 0 से 3 लाख रुपए निल, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। नई घोषणाओं के बाद 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को नई कर व्यवस्था के तहत अब 1.5 लाख रुपए कर देना होगा, जो अभी 1,87,000 रुपए है। हाईएस्ट सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके अलावा अब सैलरीड क्लास करदाता नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था में भी 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकेंगे। अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ ही लिया जा सकता था। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हैज हैड सब्सटैंशियल चेंजेस व्हिच विल बेनिफिट द मिडिल क्लास एंड आल्सो बिकॉज दिस कंट्री हैज बीन वेटिंग फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन टू बी सिंप्लीफाइड, आल्सो waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance.
मिडिल क्लास को मिली राहत का एक्सपर्ट्स, उद्यमी खूब स्वागत कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने ना केवल 5 लाख को 7 लाख किया, बट इवन द मिडिल ब्रैकेट एंड राइट अप टू दी टॉप ब्रैकेट। मेरे को लगता है कि ऐसे जीएसटी की कलेक्शन अच्छी हुई है एंड ऐसे लगता है गवर्नमेंट को कि आगे जाने में भी जीएसटी की कलेक्शन काफ़ी भारी रहेगी। ये जो बजट है बहुत ही प्रगतिशील है, क्योंकि जब हम किसी बजट की बात करते हैं, चाहे घर के बजट हो या सरकार के या देश की, कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, ये जरूरी होता है। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C और 80D का इस्तेमाल करके टैक्स पेयर्स टैक्स बचाते थे, लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूट खत्म कर दी गई है। फाइनेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि लोगों की सेविंग्स की आदत में शायद बदलाव दिख सकता है। टैक्स सेविंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता था उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यदि ओल्ड टैक्स रिजिम को भी ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए जाते, जैसे कि 80C की लिमिट बढ़ाई जा सकती थी, 80D यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उस पर जो टैक्स में छूट मिलती है उसको बढ़ाया जा सकता था। विपक्ष भले इसे चुनावी बजट करार दे, लेकिन मध्यम वर्ग के चेहरे फिलहाल खिले दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब समझते हैं कि इस नए टैक्स स्लैब से किसे कितना फायदा होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किसकी कितनी कमाई है, पहले कितना टैक्स देना पड़ता था और अब उस पर कितना टैक्स होगा। 7 लाख रुपए सालाना पैकेज वाले को पहले 33,800 रुपए टैक्स देना पड़ता था, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। वहीं जिसका पैकेज 8 लाख रुपए है उसे 46,800 रुपए पहले टैक्स देना पड़ता था, जो अब घटकर 35,000 रुपए हो गया है। 9 लाख रुपए वाले सालाना पैकेज वाले को 62,400 रुपए देने पड़ते थे और अब देने होंगे 45,000 रुपए। 10 लाख वालों को 78,000 रुपए पहले देने पड़ते थे और अब ये कम होकर 60,000 रुपए रह गए हैं। तो वहीं 12 लाख वाले सालाना पैकेज वाले को 1,19,600 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब देना होगा 90,000 रुपए। तो वहीं जिनका पैकेज 15 लाख रुपए है उन्हें देना पड़ता था 1,95,000 रुपए, जो कम होकर अब रह गया है 1,50,000 रुपए। तो बजट के दौरान सवाल ये भी उठता है कि सरकार रुपए कहां से कमाती है और कहां पर खर्च करती है। तो आइए 1 रुपए के माध्यम से समझते हैं सरकार कैसे खर्च करती है 1 रुपया। समझिए, सब्सिडी में 7 पैसे जाते हैं, पेंशन में 4 पैसे जाते हैं, ब्याज का भुगतान किया जाता है 20 पैसों के साथ और फिर टैक्स और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा 18 पैसे खर्च किया जाता है। केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं उनमें 17 पैसे खर्च होते हैं। केंद्रीय मदद से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें 9 पैसे खर्च करती है सरकार। फाइनेंस कमीशन और ट्रांसफर पर 9 पैसे खर्च होते हैं और बाकी के जो सरकार के खर्चे हैं उनके लिए रखे गए हैं 8 पैसे। साथ ही रक्षा मामलों में 8 पैसे खर्च किए जाते हैं। अब सवाल ये भी है कि सरकार 1 रुपया कमाती कैसे है। 1 रुपए की कमाई होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6 पैसे आते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2 पैसे आते हैं, उधार और दूसरे कर्ज से सरकार कमाती है 34 पैसे, जीएसटी से कमाए जाते हैं 17 पैसे, कॉर्पोरेट टैक्स से 15 पैसे सरकार कमाती है, साथ ही इनकम टैक्स से सरकार को मिलते हैं 15 पैसे, एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे और फिर कस्टम ड्यूटी से भी सरकार 4 पैसे की कमाई करती है। सरकार तो दावा कर रही है कि ये बजट आम जनता का है, समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि ये पूरी तरह चुनावी बजट है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the लोकसभा में देश का बजट पेश करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनकी झोली में जैसे हर तबके के लिए कुछ न कुछ निकलता गया और सत्ता पक्ष तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करता रहा। प्रधानमंत्री ने भी बजट को पिछड़े तबकों को आगे बढ़ाने वाला बताया। एनडीए के साथी दलों ने भी। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा।
मिडिल क्लास जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करती है, उनको जिस तरीके से इसमें रियायतें दी गई हैं, पर्सनल इनकम टैक्स का स्लैब वो 5 लाख से 7 लाख तक बढ़ाया गया, उसके बाद भी जो स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं वो आपकी जेब में कैसे ज़्यादा पैसा बचे उसी को ध्यान में रखते हुए वो चेंजेस किए गए। 10% in the new tax regime with income लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये खाने के नहीं दिखाने के दांत हैं। एक कहावत याद आए कि हींग लगे ना फिटकरी पर रंग चोखा हुई। इसमें कोई देने का नहीं है, फिर दिखाने का है। कल प्रेसिडेंट भी, पहली महिला प्रेसिडेंट और पहली बार महिला फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ मिलकर बजट अनाउंस हो रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का जो हमें उम्मीद थी कि महिलाओं को इकोनॉमी से जोड़ेंगे, कैसे उनके लिए व्यवस्था करेंगे कि वो स्टार्टअप्स में आए, वो लेबर मार्केट में आए, उस पर किसी का संज्ञान नहीं लिया गया है, ना कोई अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो ये डिसअपॉइंटिंग है। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि न्यू वाइन ओल्ड बॉटल डाला है, लेकिन ओल्ड बॉटल भी अब कई जगह से क्रैक हो चुका है। बहुत ही निराशाजनक बजट है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की कोई व्यवस्था नहीं, रेलवे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया, कोई नई रेल नहीं, कुछ नहीं, कुछ बजट ही नहीं ज़्यादा दिया उसको, कोई MSP के लिए कोई गारंटी की व्यवस्था नहीं, जो इनको वचनबद्ध नहीं किया। This is the first budget in अमृतकाल। मौजूदा मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है, इसे वो अमृतकाल का बजट बता रही है। इसमें कोई शक नहीं कि साल 2023 के इस बजट में सरकार ने खोज कर हर तबके के लिए कोई न कोई ऐलान किया है, मगर विपक्ष का ऐतराज है कि इस बजट में ऐलान ज्यादा है, ठोस बातें कम। संसद भवन से उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। इस बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मित्रकाल बजट, नौकरियां देने का इसमें कोई विजन नहीं है, महंगाई खत्म करने की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। 1% अमीर 40% दौलत के मालिक हैं, 50% गरीब, 64% GST अदा करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं, लेकिन PM को कोई चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जमानत अदा न कर पाने वाले गरीब कैदियों को सरकारी मदद दी जाएगी। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संविधान दिवस पर दिए गए भाषण के बाद किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति ने उन गरीब आदिवासियों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया था जो छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल में बंद हैं। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से उन कैदियों की मदद करने का आग्रह किया था जो जमानत राशि का भुगतान ना कर पाने के चलते जेल में बंद है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन जेल से रिहा हो चुके हैं। लखनऊ के सेशन कोर्ट ने कल ही सिद्दीक कप्पन को रिहा करने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने उनके बेल बॉन्ड को स्वीकार कर लिया था। थोड़ी ही देर पहले जेल से उनकी रिहाई हुई है। आपको बता दें कि उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। कप्पन को 1 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से PMLA केस में जमानत मिल गई थी। करीब 27 महीनों से जेल में रहे सिद्दीक कप्पन आखिरकार अब जेल से रिहा हुए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी वेदांत हमें देंगे। वेदांत, 1 महीने पहले ही जमानत मिल चुकी थी, अब जाकर उनकी रिहाई हुई है, क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिद्दीक कप्पन लगभग 2 साल के बाद जेल से बाहर निकले हैं। याद रखिएगा कि कई केसेस उन पर लगे, स्ट्रिक्ट केसेस, एंटी टेरर लॉ जो UAP है उसके अंदर उन पर चार्जेस थे। उसके बाद PMLA जो एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे उनके ऊपर। हालांकि उनका जुर्म क्या था, वो हाथरस जा रहे थे, एक बहुत ही हॉरिफिक क्राइम, 19 साल की लड़की का जो बलात्कार हुआ उस पर रिपोर्ट करने जा रहे थे और वहां पर उनको अरेस्ट किया गया। सबसे पहले पुलिस ने कहा कि वो राइट्स इंसाइट
कर रहे हैं, वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं और उनको सेडिशन से पहले बुक किया गया एंड आफ्टर दैट यूएपीए, और उसके बाद ईडी ने भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी उनके ऊपर कई मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगाए। तो याद रखिएगा कि उनको बेल दोनों ही केसेस में मिल गई थी। पहले उनको टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी टेरर केस में, फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है उसमें बेल दी गई, उस केस में बेल मिल गई थी उनको। तो दोनों केसेस में बेल मिलने के बावजूद भी लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया था और वो उसके बाद भी जेल में कैद थे। हम आपके यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो निकल कर आए जेल से और उन्होंने यही कहा कि मेरा जुर्म आखिर है क्या, मैं सिर्फ एक क्राइम को रिपोर्ट करने जा रहा था, यही मेरा जुर्म है। और 2 साल बहुत मुश्किल रहे हैं उनके लिए और एक ये हिस्टोरिक मोमेंट है कि फाइनली जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन जेल से बाहर निकल चुके हैं। याद रखिएगा कि कई जर्नलिस्ट साथी, मीडिया इंडस्ट्री पूरी साथ में आकर उन्होंने बोला कि दिस इज एब्सोल्युटली अनरीजनेबल। तो अब यहाँ पर ये हिस्टोरिक मोमेंट 2 साल के बाद सिद्दीक कप्पन यहाँ बेल के बाद जेल से बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल वेदांत, एक बड़ा तबका रहा जिन्होंने सिद्दीक कप्पन को सपोर्ट किया और सिद्दीक कप्पन हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी बात करते रहे। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें ये बोलते हुए नजर आ रहे थे वो कि मुझे विश्वास है कानून में और संविधान में। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि ये हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी खड़े रहे हैं और हाथरस में जब वो जा रहे थे तो उनको बहुत से आरोप उन पर लगाए गए। इनफैक्ट पीएमएलए कोर्ट ने तो ये भी कहा कि जो पीएफआई है जो अब बैन कर दी गई है उससे वो मनी रिसीव कर रहे थे और तमाम इस तरीके के आरोप। लेकिन दोनों ही केसेस में उनको जमानत मिली। टॉप कोर्ट ने उस केस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स दिए थे जब उन्होंने जमानत दी थी सिद्दीक कप्पन को। तो ना सिर्फ उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं विक्ट्री है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी पहलू इसका ये भी है कि याद रखिएगा कि 1 महीना हो गया था उनको बेल मिली थी, उसके बावजूद भी वो जेल में कैद थे। तो ये जो प्रोसीजरल डिलेज हैं, ब्यूरोक्रेटिक लैप्सेस हैं, जिसकी वजह से बहुत से कैदी जिनको जमानत मिल चुकी है उसके बावजूद भी वो जेल में रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी हमने इस केस में भी देखने को मिला। बिल्कुल, और वेदांत आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब बाहर निकले सिद्दीक कप्पन जेल से तो कोई आया था उनको लेने के लिए, कुछ कमेंट उन्होंने किया, मीडिया के सामने कोई बात की? देखिए, उनके लॉयर्स और उनका परिवार यहीं पर मौजूद है, लेकिन वो उनको अभी रिसीव करने नहीं आए। वो उनसे जाकर मिलेंगे ऑब्वियसली, और उनके लॉयर्स ने बहुत पिछले 1 महीने में बहुत कड़ी मेहनत की। उनका बेल और उनका रिलीज ऑर्डर सिक्योर करने के लिए वो बहुत बड़ी कश्मकश थी उनके लॉयर्स के लिए भी। साथ ही उन्होंने आके देखिए सबसे पहले यही कहा कि उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो रिपोर्ट करने जा रहे थे और उनका कोई और जुर्म नहीं था। और 2 साल उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहे पिछले कुछ दिनों में। शुक्रिया आपका वेदांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई हो चुकी है, जमानत उन्हें मिल चुकी है। 27 महीनों से जेल में थे सिद्दीक कप्पन, आखिरकार जेल से बाहर आए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और चलिए अब देख लेते हैं 5 बड़ी खबरें जो अब तक चर्चा में बनी हुई हैं। 2 साल बाद जेल से रिहा हुए सिद्दीक कप्पन पत्रकार हैं केरल के। दूसरी बड़ी खबर, निवेशकों का हित सर्वोपरि है, गौतम अडानी ने ये कहा। क्या बजट से है 2024 चुनाव की तैयारी, ये बड़ा सवाल। साथ ही आपको बता दें, शुभमन गिल ने खेली तूफानी पारी, T20 की सबसे बड़ी जीत दिलाई। पठान की ताबड़तोड़ कमाई जारी, 1 हफ्ते में रिकॉर्ड 634 करोड़ की कमाई की।